Okay, yesterday we understood the basic concepts, all the basic concepts which we studied: society, community, institutions, association, culture. In culture also we understood small small topics like subculture, xenocentrism, ethnocentrism, right? We understood cultural lag. See, this concept, direct question is not going to be. असा direct प्रश्न येणार नाही परीक्षेमध्ये. For UPSC, okay, MPSC they might ask such question. You never know because next year it is going to be the first attempt for such new syllabus. So in this particular case, अगर आप देखें तो अगर आप देखें तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए बिकॉज दिस वर्ड्स आर गोइंग टू गेट यूज्ड इन अ लॉट ऑफ as we go higher up the order. जसं आपण जसं ॲडव्हान्स करतो तसं ते तुम्हाला ते शब्द it should be absorbed and do not use these words in your GS answers. Xenocentrism, ethnocentrism, where somewhere down the line you are giving glimpses that you are a student of sociology. Don't do that. So now new topic which I am going to talk is modernity and social change in Europe. Why I am teaching you this subject? Obviously it is a part of your syllabus, your first topic. But in this particular topic, modernity and social change in Europe, this was the main reason why sociology as a science got evolved. Because what happened due to modernization, industrialization, urbanization in Europe में जो changes हुए और इतने rapid changes हुए industrialization के वजह से कि there were problems. There was American Revolution, there was Industrial Revolution, there was Russian Revolution, French Revolution, sorry. So French Revolution was there. So it brought about new concepts like democracy, voting rights, equality. People were not used to such things. लोगों को इस चीज़ की आदत नहीं थी. लोग बोल रहे थे ये क्या होता है, लिबर्टी, इक्वालिटी क्या होती है? We are used to slavery, है ना? उनको आइडिया ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में. So naturally, when modernization came about, where people started demanding voting rights, people started demanding economic rights, civil rights, fundamental rights, so that was a new thing for Europe. Obviously, the rest of the world was not, used to it. कि बाकी लोगों को तो पता ही नहीं था. That's why when Europe faced these new challenges, they faced new problems also. Yes, they brought about success, it brought about money, it brought about a lot of flourish. Standard of living went high, but it also brought about unemployment, crimes, poverty, exploitation of the working class, no fixed wages, no good working conditions, harassments by the capitalists. ये सारे प्रॉब्लम आए और इसके लिए तो कार्ल मार्क्स भी ऊपर आया. So it brought about so many problems where this और ये realization और already existing methods जो थे, they were not able to satisfy these problems. They were not able to solve these problems, and then people realized कि इन problems को study करने के लिए sociology के लिए पढ़ना पड़ेगा. अब legally पढ़ के या politically पढ़ के या economically पढ़ के ये solve नहीं होता problem. इसको आपको sociologically पढ़ना पड़ेगा. So yes, so we'll study this topic in detail. What changes were taking place? क्या-क्या changes हो रहे थे? In the medieval Europe, traditional and feudal society, it was a subsistence agrarian economy. तो medieval Europe में society traditional थी. Okay, every word has a meaning in sociology. Okay, medieval times ये तो आप समझ ही सकते हो, जैसे medieval history पढ़ते हैं, वैसे medieval Europe में society was traditional and feudal. Traditional means what? Traditional norms, religion, culture was very much prevalent. Agriculture was the main focus. Okay, animal husbandry, and they were feudal. Feudal lords were there, servants, nobles. Okay, monarchy. That kind of people were ruling the society. It was not a democracy which we have today. It was no democracy. It was a feudal society. It was a traditional society. और मैंने बोला it was an agrarian economy. It was a subsistence agrarian economy that majority of the people were relying on agriculture for their livelihood. Okay, subsistence मतलब again what do you mean by subsistence? That they performed agriculture only for livelihood. They did not do on a commercial basis. आज agriculture एक business है. Agriculture एक आप सब्जियां बेचते हो, फल बेचते हो. उस वक्त ये जो लोग agriculture करते हैं वो सिर्फ अपने फैमिली के लिए करते थे, अपने सर्वाइवल के लिए करते थे, और थोड़ा बहुत अगर कुछ बच जाता था देन वो उसको मार्केट में जाके बेच देते थे या बार्टर सिस्टम से एक्सचेंज कर लेते थे कि मेरे पास आई हैव गेहूं एंड यू हैव राइस, आई हैव व्हीट, एक्सचेंज कर लेते.
मेरे पास ये एक्स्ट्रा है तो मुझे खाने की, बिकॉज फूड वॉज द मेन थिंग। द प्रोड्यूस वॉज वेरी लिटिल फॉर ट्रेड, जैसे मैंने बोला प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत कम था, तो ट्रेड बहुत कम था। Neither was there enough trade nor were the conditions fertile for trade। ना ही conditions fertile थी, मतलब देखिए आज आप देखते हैं there is globalization, there is liberalization, there is privatization, we have made condition easier for doing business। अभी आप बोलोगे डबल टैक्सेशन आप नहीं कर सकते, आपको दो सरकारों के बीच में एग्रीमेंट्स होने चाहिए कि अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है when it comes to ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स, तो उसके लिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है ना, वी हैव सर्टेन लीगल सिस्टम सेट अप सो दैट इवन इफ द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस देयर इज अ सॉल्यूशन टू दैट प्रॉब्लम। उस जमाने में क्या था प्राइवेट इंटरनेशनल, वहां पे क्या के कायदे, जो राजा बोलेगा वही कायदा, राजा ने बोला उनके साथ ट्रेड नहीं करना, नोबडी हैड द गट्स टू आस्क व्हाई, क्यों भाई क्यों नहीं करना। आज हम पूछ सकते हैं, वी कैन गो टू कोर्ट इफ यू आर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट डिसीजन। उस समय में टाइम वाज डिफरेंट, ट्रेड वाज लिटरली नेग्लिजेंट। Politically, it was decentralized system. Feudal lords enjoyed all powers in state. State मतलब property, उनकी जमीन, उसके ऊपर जो भी feudal lord होता था, जिसकी property होती थी, उसका पूरा अधिकार होता था। The feudal lord is like a big जमींदार, okay, जो उनके property पे वो राज करते थे। And every person had the power over his property, जिसको वहाँ पे जाके काम करना, तो जो वो wages बोलेगा उसी wages पे काम करना पड़ेगा। अगर उसने बोला मैं wage नहीं दूंगा, मैं सिर्फ 2 वक्त का खाना दूंगा, रहने के लिए जगह दूंगा, तो वो भी उस चीज के लिए भी लोग तैयार हो जाते थे, ठीक है। और आज भी हम कहीं इंडिया में अगर आप रूरल एरियाज में जाओगे तो ये कंसेप्ट है, खेती होती है, बहुत बड़ा जमींदार होता है, वो बोलते मैं पैसे भी से नहीं दूंगा, बट यस यू कैन कम, यू कैन वर्क, मैं आपको 2 वक्त का खाना और रहने के लिए जगह दे सकता हूँ। दे आर हैप्पी इन दैट, दैट इज द लेवल ऑफ पॉवर्टी इवन देयर टुडे इन इंडिया। Socially, it was a rigidly stratified society in forms of states. Each state was governed by its own laws. Rigidly stratified society. देखिए, मेरे YouTube चैनल पे भी मैंने स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अबाउट स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। हमारा समाज स्ट्रैटास में डिवाइडेड है। अभी आप पूछोगे सर कैसे, तो अगर आप हमारे समाज को इकोनॉमिकली स्ट्रैटिफाई करना चाहते हो, वी हैव द अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड द लोअर क्लास, करेक्ट। इफ यू वांट टू स्ट्रैटिफाई आवर सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस, तो हम कास्ट के बेसिस पे बोल सकते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और अगर आप पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हो तो पॉलिटिकली पावरफुल एंड पॉलिटिकली पावरलेस, ऐसे दो स्ट्रैटास होते हैं। तो हमारे समाज में स्ट्रैटिफाइड है। और जब मैं बोलता हूँ कि स्ट्रैटिफाइड सोसाइटी बहुत रिजिड है, बिकॉज यहाँ पे मैंने शब्द का इस्तेमाल किया रिजिड का मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट। इन व्हाट टाइम्स आई एम सेइंग, इन मिडिवल यूरोप, हम मिडिवल यूरोप की बात कर रहे हैं। एट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी पर्सन टू गो फ्रॉम वन स्ट्रैटा टू अनदर स्ट्रैटा। अ सर्वेंट can never dream of becoming a feudal lord। एक नौकर feudal lord बनने का सपना भी नहीं दे सकता, वो बन ही नहीं सकता, इतनी रिजिड सिस्टम थी। हमारा समाज भी काफी रिजिड था। हमारे समाज में भी अगर आप बोलोगे शेड्यूल कास्ट है, he would never imagine to become a Brahmin। It is rigid, हो ही नहीं सकता, आप अपनी कास्ट चेंज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आई एम सेइंग इट इज रिजिडली। वहां पे सोशल मोबिलिटी, देखिए ज्योग्राफिकल मोबिलिटी मतलब क्या कि आई एम गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज विद रिस्पेक्ट टू लोकेशन। बट व्हेन आई एम सेइंग सोशल मोबिलिटी, इस समाज में आप मोबाइल में बोलते हो स्टेटा, जो स्टेटस है समाज में, कि अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ भाई पिताजी एक नौकर थे, सरकारी नौकर थे, और जो बेटा है वो मिनिस्टर है, तो व्हाट हैज हैपेंड, दिस इज सोशली मोबाइल अपवर्ड्स, ये ऊपर चला गया है। पर अगर पिताजी बहुत बड़े ऑफिसर थे, बहुत बड़े, उनका बेटा चपरासी बन गया, तो दिस इज डाउनवर्ड सोशल मोबिलिटी। तो अब समाज में ऊपर नीचे हो रहे हैं। ज्योग्राफिकल मोबिलिटी इज डिफरेंट, इट इज लोकेशन। यहाँ मैं पुणे से मुंबई गया, मुंबई से दिल्ली, यानी ज्योग्राफिकल मोबिलिटी। बट सोशल मोबिलिटी वाज वेरी वेरी रिजिड और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इन मिडिवल यूरोप, ठीक है। और हर स्टेट मतलब प्रॉपर्टी, जमीन, ओके, जो भी वहां का फ्यूडल लॉर्ड होता था वो अपना कायदा खुद बनाता था कि मेरे जमीन पे, मेरे स्टेट में मैं बोलूंगा वही होगा, नेचुरल है। बिकॉज वैसे भी हम जानते हैं कि भाई जिसकी प्रॉपर्टी उसका ओनरशिप वही सब कुछ डिसाइड करता है, करेक्ट। बाय 14th सेंचुरी द अबव सिस्टम वाज ऑन द डिक्लाइन। अभी 14th सेंचुरी से धीरे-धीरे ये सिस्टम डिसमेंटल होने लगे, धीरे-धीरे दिस सिस्टम स्टार्टेड टू गेट वीक। डिसेंट्रलाइजेशन रिजल्टेड इन फ्यूड्स अमंग फ्यूडल लॉर्ड्स। तो देखिए मैंने आपको बोला हर स्टेट में अपने अपने लॉज थे, हर कोई फ्यूडल लॉर्ड अपने हिसाब से चलाना चाहता था अपना स्टेट। उसके वजह से क्या हुआ, झगड़े बहुत बढ़ गए।
दे स्टार्टेड टू फाइट विद ईच अदर, उनके झगड़े बहुत बढ़ गए। और ऑब्वियसली मैंने जहाँ कहा देखिए भाई अगर झगड़े बढ़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है तो सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसे होगा? देयर हैज टू बी पीस। देखिए झगड़े चालू हो गए। These feuds were detrimental to trade. ट्रेड को कैसे detrimental? वो फ्यूडल लॉर्ड और ये फ्यूडल लॉर्ड का नहीं जमता, तो वहां से हम हमारी ट्रेड ही नहीं कर सकते। इवन तो अगर वही एक रास्ता हो जहां से हम हमारे गुड्स लेके जा सकते, वो फ्यूडल लॉर्ड बोलेगा किसका है ये गुड्स? सर वो बाजू वाले का है, मेरे जमीन से नहीं लेके जा रहे, घूम के जाओ। अरे फिर जो चीज आप 1 किलोमीटर में ट्रैवल करके पूरा अपना गुड्स मार्केट में लेके जा रहे हो, तो आप 10 किलोमीटर ट्रैवल करके जा रहे हो, तो जो आम आदमी है उसको कितना तकलीफ हो रहा है। सो इट वाज डेट्रीमेंटल टू द ट्रेड एंड मार्केट इकोनॉमी स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। धीरे धीरे मार्केट की जो इकोनॉमी है वो डिक्लाइन होने लग गई। प्लेग ब्रोक आउट, प्लेग भी आ गया, और उस जमाने में इतनी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। प्लेग ब्रोक आउट एंड हाफ ऑफ द पॉपुलेशन डाइड। आधी पॉपुलेशन यूरोप में they died. Feudal lords had to entice people from outside to work on their land by offering cash. अभी देखिए पूरा मैंने क्या बोला, फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते थे हम कुछ पैसा नहीं देंगे, खाने पीने को देंगे, रहने को देंगे। पॉपुलेशन ही नहीं है। पहले कैसे लाइन लगती थी, मुझे काम दो, मुझे काम दो, मैं काम करना चाहता। अभी लोग ही नहीं है। अभी ये लोग जा रहे हैं भाई हमारे फील्ड में काम करो, हमारी खेती। वो अकेला इतना 100 एकड़ कैसे खेती करेगा? लोग चाहिए ना काम करने के लिए। No people, so they started to go to people कि आप आइए हमारे पास, हमारे लैंड पे आप खेती बाड़ी कीजिए और हम आपको कैश देंगे। अब देखो पैसा आ गया, मनी। जो पहले इसका इट वाज काइंड ऑफ बार्टर सिस्टम और इट वाज काइंड ऑफ नो मनी नो कैश इकोनॉमी। अभी वो कैश देने लगे कि आप अगर हमारे फील्ड में काम करोगे तो हम आपको पैसा देंगे। सो इफ यू गेट मनी यू गेट एम्पावर्ड। इकोनॉमिकली आप एम्पावर हो जाते हो, उस पैसे के साथ क्या करना आप डिसाइड कर सकते हो, एजुकेशन, हेल्थ, व्हाटएवर। ठीक है, तो आप देख सकते हो झगड़े होने चालू हो गए, ट्रेड कम हो गया, मार्केट इकोनॉमी धीरे धीरे कोलैप्स होने लग गई, एंड एट द सेम टाइम प्लेग आ गया। प्लेग की वजह से आधी पॉपुलेशन गायब हो गई, स्वाइप आउट हो गई। इसीलिए दे हैड टू ऑफर पीपल कि आप आके हमारे यहाँ पे जॉब कीजिए, है ना। ये आप मतलब काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे एट्रिशन रेट बहुत ज्यादा होता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। तो कोई भी नया आता है कि ले लो इसको, क्योंकि जो एक्सपीरियंस है या जो काफी सालों से उस फील्ड में है उनको पता होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बकवास है, वहाँ पे आप जाना नहीं। और अपने बच्चों को या अपने दोस्तों को भी बताते हैं कि वहाँ जाना नहीं, भले वो 2 पैसा ज्यादा दे रहे हैं। क्यों ज्यादा दे रहे हैं? Why other institutions are not doing? Why they are doing? Because they are, वो बोलेंगे 8 घंटा काम कर रहे हैं, वो तुमसे 16 घंटा काम कर रहे हैं। वो सिर्फ 2 पैसे ज्यादा कमाने के लिए आप वहाँ पे जाओगे, अपना सुख चैन सब भूल जाओगे। तो उनको पता होता है जो बकरा आया है उसको हलाल कर लो। हाँ, ये फैक्ट है। उसी तरीके से ये लोग पीछे लगने लगे, भाई हमारे खेती में आके काम करो, मैं आपको इतना कैश दूं। कॉम्पिटिशन, वो कितना दे रहा है, 100 रुपए में 120 रुपए दो, मेरे पास है। तो जो जितनी कैपेसिटी थी, जिसकी जितना पैसा, तो एक्चुअली हेल्प लेके से लोग मर गए, लेकिन एक्चुअली कैश आ गई ना इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी के लिए कैश कभी भी बेटर है बार्टर सिस्टम से, बिकॉज बार्टर सिस्टम के सर्टेन लिमिटेशंस है। आप इकोनॉमी में अगर आपने पढ़ा होगा कि एग्जैक्ट एक्सचेंज नहीं होता है, कि अगर आप कोई मुझे बोलेगा हाँ मैं आपको एक बनाना देता हूँ और आप मुझे मैंगो दो, प्लीज। एक मैंगो कम से कम 150-200 रुपए का होता है, एक बनाना 5 रुपए का होता है। तो ऐसा एक 1 to 1 नहीं कर सकते, बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए इकोनॉमी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैश आ गया, धीरे धीरे कैश आने लग गया। नॉलेज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम चाइना हैड रीच्ड इंग्लैंड। चाइना से अब टेक्नोलॉजी आ गई। इंग्लैंड मतलब दैट टाइम obviously England is considered to be a part of Europe, but it is not a part of European Union. European Union में नहीं था अभी इंग्लैंड, उसने छोड़ दिया। Mariners compass, gunpowder, knowledge of printing paper, ठीक है, ये printing and paper मतलब कागज, ये सारी चीजें आ गई यूरोप में। Printing, gunpowder मतलब ये डिफेंस हो गया। Mariners compass, वो compass से आप डायरेक्शन, that was very beneficial for नेविगेशन। टेक्नोलॉजी आ गई, उस मैरिनर्स कंपास की वजह से शिप बिल्डिंग एक्टिविटी बढ़ गई। टेक्नोलॉजी की वजह से शिप नेविगेशन आसान हो गया, लीडिंग टू डिस्कवरी ऑफ अमेरिका। आप सभी को पता हो नहीं हो बता देता हूँ, अमेरिका वाज अ कॉलोनी ऑफ द इंग्लैंड। इंग्लैंड की इकोनॉमी थी, एंड अमेरिका में सारे जो क्रिमिनल्स हुआ करते थे उनको रखा जाता था। उन्होंने सभी रेड इंडियंस को मार दिया, वहाँ के जो एक्चुअल नेटिव्स थे।
अभी अगर वो रेड इंडियंस पता होगा अपने कार्टून में अपने लाल कलर ऐसा लगा के घुड़ ऐसे ऊपर शर्ट में घोड़े पे भागते थे, एक्चुअल काउबॉयज, वो सब खत्म हो चुके हैं, दे आर नो मोर। ऑस्ट्रेलिया इज अनदर प्रिजन। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत वहाँ पे वो भी इंग्लैंड की कॉलोनी थी। आपने देखा होगा कि जब क्वीन एलिजाबेथ II शी पास्ड अवे रिसेंटली, द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड, एंड ऑस्ट्रेलिया वाज बोर्न। ऑस्ट्रेलिया वाज लाइक अरे हमारा, तो सभी बहुत लोगों को नहीं पता है कि बट स्टिल दे आर रिपोर्टिंग टू द मोनार्क। यस, ऑस्ट्रेलिया इवन दो a sovereign country, but they are answerable to the monarch. They are under monarchical government of England, ऑस्ट्रेलिया। तो वो उनका बहुत बड़ा जश्न हुआ कि अरे सब जन मोन किया सब लोगों ने। मैं बोला सही है, वो छोड़ा हमारे यहाँ पे भी हो रहा था, अरे यार वो लोग 200 साल बैठ के लुट के चले गए, तुम लोग क्या यहाँ पे मोन रखे हो, पागल है, पागल ही है। गोल्ड एंड सिल्वर वाज डिस्कवर्ड इन लैटिन अमेरिका। देखिए पहले ब्रॉन्ज से कॉइन्स बनते थे, ब्रॉन्ज एज आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ब्रॉन्ज एज, कॉपर एज, है ना। तो गोल्ड और सिल्वर मिलने के बाद सडनली वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो गया। गोल्ड सिल्वर की वैल्यू हमेशा ब्रॉन्ज या एल्यूमिनियम से ज्यादा है। यूरोपियन मार्केट्स वर फ्लडेड विद गुड्स। अभी देखिए मार्केट इकोनॉमी को पुश मिला। इट लेड टू सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। तो जो पहले डिसेंट्रलाइजेशन, जब जो फ्यूडल लॉर्ड चाहता है वो होगा, वैसे नहीं रहा। अभी आप अपने मर्जी से अपनी स्टेट को कंट्रोल नहीं कर सकते। मोनार्की आ गई, सेंट्रलाइजेशन आ गया कि देखो सारे यूरोप में ये लॉ लागू होगा। फ्यूडल लॉर्ड्स का जो पावर था वो कम हो गया, बिकॉज लोग ही नहीं उनके पास काम करने के लिए। सो दे हैड टू गिव इन कि अरे भाई इतना जमीन करके करूं क्या, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो करूंगा क्या मैं। सो सेंट्रलाइजेशन हो गया। एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब नोबडी विल क्वेश्चन द मोनार्क, देयर इज नो लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ द मोनार्क, व्हिच इज अनदर बैड थिंग। क्योंकि हम जानते हैं कि whenever any power or even your rights when they are given absolutely, people will misuse it, abuse it. So, but okay, that time was different. This is the time after 14th century जहाँ पे monarchy was the way. Article 14 जो 17 जो है वो absolute right है ना? Untouchability का? हाँ, Article 17 is, but उसके अंदर भी जो कायदा पास किया उन्होंने, they have passed the law. With regards to प्रिवेंशन ऑफ SC एक्ट है, उसके बाद सिविल राइट्स एक्ट है। तो उसके अंदर सर्टेन एक्सेप्शंस हैं कि उन्होंने बताया है कि देखिए फॉर एग्जांपल सर्टेन रिलीजियस प्लेसेस में सर्टेन लोगों को अलाउ नहीं, तो वो टेंपल अगर अलाउ नहीं कर रहे तो फिर आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट में जाने के बाद जो कोर्ट डिसीजन देगा उसका, अभी ज्यादातर आज के डेट में तो भैया लोगों को तो अलाउ किया जाता है, चाहे वो औरतें हो या शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो। सर जैन मंदिर हो गए या पारसी मंदिर की जो होते हैं टेंपल्स, उसमें तो फिर नॉन रिलीजन मतलब अगर उनके रिलीजन के लिए तो उनको नहीं अलाउ करते ना, तो इस पे हम केस कर सकते हैं मतलब लाइक केस कौन करेगा जिनको अलाउ नहीं किया जा रहा है? लोग टेंपल वाले तो नहीं बोलेंगे, तो आप केस कर सकते हो। एंड मैंने अब तक जितने मैंने जजमेंट्स देखे हैं, कोर्ट हैज ऑलवेज गिवन राइट टू मूवमेंट और एवरीबॉडी इंडिविजुअल्स राइट टू रिलीजन। वो जो मंदिर में जाना चाहता है, जिस मस्जिद में जाना चाहता है वो जा सकता है। बट देखिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा इस चीज का। एक बार आई वेंट टू अ चर्च, ऐसे ही मैं गया, मैंने बोला दिख रहा है तो चलो लेट्स गो चर्च। बहुत दिन हो गए थे मैं चर्च नहीं गया। मैं चर्च गया एंड मैंने यहाँ तक लाइक नॉर्मली ऐसे किया, तो दे स्टार्टेड लुकिंग एट मी डिफरेंट वे, बिकॉज मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने ऐसे किया दैट दे रियलाइज दैट आई एम अ हिंदू। देन आई वाज गोइंग बैक तो देन हमारे यहाँ पे जैसे आरती होती है वहाँ पे वो लोगों का प्रेयर चालू हो गया, तो मैं रुक गया। मैंने कहा प्रेयर चल रही है, अभी खड़े हो जाते हैं। तो उस प्रेयर के लिए आधा पौन घंटा मैं बोला अटक के हमने आते हैं या एक्चुअली आई फेल्ट लाइक दैट। तो उसके बाद दे वर गिविंग समथिंग, सभी को प्रसाद है सब होली वाटर, हाँ होली वाटर, हाँ होली वाटर देने लग गए। देन आई वाज आल्सो, मैंने बोला चलो हम भी लेते हैं होली वाटर, तो आई आल्सो स्टार्टेड, मैं भी रुक गया वहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने सभी को देना स्टार्ट किया। मेरा नंबर आया, उन्होंने मुझे पूछा आप है कौन? आदित्य केदारी। आर यू क्रिश्चियन? आई सेड नो आई एम हिंदू। आपको नहीं है, आपको हम नहीं दे सकते। Will I go again? Will I go to the court? Now that is their, ये religion और state इसमें इंटरफेयर नहीं करता ये इशू। हाँ चर्च में अंदर जाना इसके लिए मुझे रोक देते तो मैं तो जाता भी नहीं बोला, हाँ भाई ठीक है हम सब बाबा द गुरु शेट में जाना तो गुरु शेट, तो मतलब ये होता है ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो हर चीज के लिए कोई ना कोई इश्यूज है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर विल ऑलवेज बी एन एक्सेप्शन, लॉ एंड ऑर्डर विल ऑलवेज बी एन लिमिटेशन।
कि आप अगर उसका इस्तेमाल करके अगर आप झगड़ा कर रहे हो उसको लेके, अगर आप मारपीट कर रहे हो तो आईपीसी के सेक्शन लगेंगे, पुलिस वाले आपको अरेस्ट करेंगे, तो देयर विल बी ऑलवेज एन एक्सेप्शन। ठीक है, ओके, विल कम बैक टू आवर टॉपिक। इट वाज एनकरेज्ड बाय मर्चेंट क्लास। मर्चेंट क्लास मतलब बिजनेस क्लास, जो ट्रेडिंग में सबसे आगे थे, बिकॉज उनका इंटरेस्ट सिर्फ ट्रेड में है। दे डोंट केयर वेदर द गवर्नमेंट इज मोनार्की, डेमोक्रेसी, फ्यूडल लॉर्ड चला रहा है कि कोई किंग चला रहा है, वो लेना है उनका क्या, हमें ट्रेड करने दो। We just want to trade. We are not interested in anything else. So that effective law and order could be established. अभी effective law and order establish कभी होगा जब मोनार्की होगी। अगर हर फ्यूडल लॉर्ड को अपना अपना हक दे दिया तो मैंने तो बोला फ्यूडल लॉर्ड अपने अपने हिसाब से लॉ बनाते थे। So there will be conflicting laws। फिर किसका प्रिवेल करेगा? जिसकी प्रॉपर्टी उसका लॉ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ऐसा चलेगा तो नहीं ना जिंदगी भर। ट्रेड को अगर एक्सपांड करना है, ग्लोबलाइजेशन करना है, तो यू हैव टू हैव सर्टेन यूनिफॉर्मिटी इन योर लॉज। ग्रोइंग ट्रेड लेड टू इंक्रीज इंटरेक्शन इन न्यू लैंग्वेजेस। अभी नई नई भाषाएं लोगों को समझ में आने लग गई। सो सी हाउ देयर सोशल चेंज इज हैपनिंग, हाउ मॉडर्निटी इज हैपनिंग। दिस कम्युनिटीज गवर्न्ड बाय सिंगल रूलर गिव राइज टू सोवरेन नॉर्थ स्टेट्स। तो यूरोप में के जो नॉर्दर्न स्टेट्स थे वो सोवरेन हो गए। सोवरेन मतलब ऑब्वियसली देयर इज नो एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर ऑन देम टू मेक एनी काइंड ऑफ लॉज और पॉलिसीज। उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। These wealthy merchants looked to reinvest surplus profits, and they did so in land, and they used it for sharing, ship rearing and scientific farming. अब ये जो merchants थे जो सिर्फ ट्रेड करते थे, अभी उनके पास पैसा आने लग गया। They started to have surplus money, capital. तो उन्होंने क्या किया? They started to buy land. जमीन खरीदने लग गए और उन जमीनों के ऊपर उन्होंने फार्मिंग और शिप रेयरिंग, शिप मतलब अपना मेंढू, क्या बोलते हैं उसको, मेंढा, नॉट अ बकरी, ओके कैसे बकरी और सब मान लो क्या, शिप रेयरिंग, वो चालू कर दिया। एंड साइंटिफिक फार्मिंग, साइंटिफिक फार्मिंग कि कैसे हम, बिकॉज दे आर मर्चेंट्स, दे आर नॉट फार्मर्स। वो फार्मर नहीं है, वो मर्चेंट है। वो क्यों कर रहा है खेती? उसको वो जो प्रोडक्ट से बेचने मार्केट में, तो कैश क्रॉप्स आने लग गए। कैश क्रॉप, बोलो कैश क्रॉप क्या होता है? शुगर केन, इट्स नॉट अ फूड क्रॉप, इट्स अ कैश क्रॉप। कॉटन है ना, फ्रूट्स, ये आप मार्केट में बेचने, वो खाने के लिए आप मैंगो नहीं लगाते 100 झाड़, वो आपको मार्केट में बेचना है ना। तो ये उन्होंने चालू कर दिया। तो ऑब्वियसली द मर्चेंट क्लास बिकेम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग आफ्टर द 14th century इन यूरोप, एंड दीज पीपल वर अ वेरी बिग लॉबी इन यूरोप। हमें ऐसे कायदे चाहिए। आपको क्या लगता है टाटा, बिरला, अंबानी लॉबिंग नहीं करते होंगे गवर्नमेंट के साथ कि ऐसे कायदे पास कीजिए ताकि हमारे इंडस्ट्री को फायदा? करते हैं, वो लॉबी करते हैं। They won't admit it in front of the media, but it's a सब मीडिया वालों को, हमको भी पता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, सभी अभी जैसे फूड इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा बदनाम किस चीज को किया है? फूड इंडस्ट्री ने फैट्स को। फैट्स आर बैड, फैट, ये फैट फ्री है, हम लोग खाए जा रहे हैं, फिर भी लोगों को डायबिटीज हो रहा है, लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। एक्चुअल रियल कल्प्रिट इज शुगर। लेकिन हम सब चीजें शुगर ही खा, क्योंकि टेस्टी लगता है ना वो शुगर। अब जैसे चॉकलेट्स है, क्रीम रोल है, जाने दो, पहले नाश्ता मैंने बहुत हेल्दी किया है, ऐसे चीजों में बोलूंगा तो इच्छा हो जाती है ना खाना खाने की। तो वो कैसे, अभी गवर्नमेंट को भी पता है कि मैगी के अंदर कार्सिनोजेनिक कंटेंट है, गवर्नमेंट को, हमें भी पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर पेस्टिसाइड है, फिर भी हम पीते हैं। बिकॉज मीडिया ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है आप लोगों का। बिकॉज व्हाई? They are wealthy and they are powerful and they are lobbying. और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स, हम टैक्स पे कर रहे हैं ना, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना आपके देश में, आपको पैसा मिल रहा है ना, और क्या चाहिए आपको? गवर्नमेंट को लोगों को दिखाना, देखिए डेवलपमेंट हो रही है, गवर्नमेंट को लोगों को दिखाना, देखिए पैसा आ रहा है, हम हमारा लोन कैसे भी आए पैसे। ठीक है, so these wealthy merchants started to demand uniform laws, they started to demand free trade, they started to demand market economy, क्योंकि उससे उनका फायदा है। कैपिटलिज्म बढ़ने लग गया। कैपिटलिज्म मतलब आप भांडवल जमा करने लग गए, आप अपने बिजनेस से पैसा जमा करोगे, और वो पैसा रादर देन स्पेंडिंग दैट मनी इन एंटरटेनमेंट, लीजर एंड फालतूगिरी, यू आर रीइन्वेस्टिंग दैट मनी इनटू योर ओन बिजनेस, और आपका बिजनेस आप बड़ा करते जाओ। सो ये वेल्दी मर्चेंट्स और आल्सो वेरी इंटेलिजेंट मर्चेंट्स, they would take away common lands of the village, enclosure movement in Europe, कि भाई धीरे-धीरे इसको enclosure movement कहा जाता है, इसको डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। enclosure movement मतलब क्या? These wealthy merchants started to buy villages,
विलेज मतलब पूरा गांव खरीद लो, पूरा का पूरा जमीन खरीद लो, कॉमन लैंड्स जहां पे सभी लोग आते जाते हैं उनको ही खरीद लो, उस जगह को खरीद लो. So they literally started to control the village economy. अभी वो क्या बोलेंगे विलेजर्स को, हाँ ये वाला क्रॉप अगर आप उगाओगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे. विलेजर भी खुश. विलेजर क्या उगा रहा था, वीट, राइस, मेल, जवार की. वो बोलेगा अच्छा ये उगाओगे तो आपको 10 रुपए देंगे, कॉटन उगाओगे तो हम 50 रुपए देंगे. तो ऑब्वियसली वो आधा फील्ड तो कॉटन लगाएगा या इवन 70%. हाँ ये वीट अपने लिए ठीक है, 50 रुपए और 10 रुपए में किसी भी उस जमाने में बहुत बड़ा डिफरेंस था. So they started to control villages, they started to control the economic sector, they started to control even the government कि हमारे ट्रेड के लिए आसानी कीजिए. It led to capitalist agrarian economy. देखिए medieval यूरोप में क्या थी, subsistence agrarian economy. It was subsistence की जहाँ पे आप सिर्फ क्यों कर रहे हो agriculture for survival, for your family needs. अगर थोड़ा बहुत आता है तो आप मार्केट में बेचते थे. लेकिन नाउ इट इज अ कैपिटलिस्ट एग्रीगेट इकोनॉमी. मतलब आप जो भी खेती बाड़ी कर रहे हो उसके पीछे का एक ही पर्पस है, पैसा कमाना. कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर वाज लुक्ड अपॉन लाइक अ बिजनेस. समझ में आ रहा है? अब तक सब मॉडर्निटी कैसी हो रही है. 14 हमने कहा मेडिवल यूरोप से स्टार्ट किया हमने, जहाँ ट्रेडिशनल था, फ्यूडल था, डिसेंट्रलाइजेशन था. फिर हमने क्या देखा, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, मर्चेंट्स पावरफुल बन रहे हैं, कैपिटलिस्ट एग्रीगेट इकोनॉमी की तरफ हम आ गए. और भी मॉडर्नाइजेशन आएगा. अभी तो हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, हम तक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आए भी नहीं. अभी तो हम एग्रीकल्चर पे ही है. राइज ऑफ कैपिटलिज्म. Capitalism is a system of production which is essentially geared towards creation of profit. America is a capitalist country, right? India is a socialist. हाँ, mixed economy में socialist. Neither we are communist, neither we are capitalist. So are we socialist? Everything is getting privatized. But still, whatever money is coming out of it, we do spend it on for the welfare of the people. It is socialist. Okay? तो अगर कोई बोलता है कैपिटलिस्ट है, हम आजकल बोल रहे हैं हाँ वो तो नया गवर्नमेंट आया, नया पीएम तो कैपिटलिस्ट है. हमारे संविधान में लिखा हुआ है प्रेयरबल में सोशलिस्ट है. एंड एज एन आईएएस ऑफिसर आपको सोशलिस्ट ही बोलना है, क्योंकि ये ओपिनियन ओरिएंटेड क्वेश्चन है. Expansion of banking companies provided credit facilities to merchants, making it easy for them to run businesses. पैसा मिलने लग गया, बैंक इंश्योरेंस, बैंक लोन्स, बैंक पैसे इन्वेस्ट करने लग गए, स्पॉन्सर्स मिलने लग गए. सो मर्चेंट्स को काफी आसानी हो गई बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए. It uprooted large number of small farmers and artisans. Many migrated to cities and America. There was a massive growth of urban centers. तो देखिए urbanization हो रहा है. And there was availability of cheap labor. बहुत ही लोग सस्ते में, कम सैलरी में या कभी-कभी बिना सैलरी के काम करने के लिए तैयार है. इंडिया की भी यही हालत है. अभी जो यूरोप में तब हो रहा था, इंडिया में अभी हो रहा है कि जहाँ पे लोग भाई हाँ जॉब मिल जाए बहुत हो गया. लॉकडाउन में तो ये हालत हो गई थी. लोग तो ये बोल रहे थे मुझे सैलरी नहीं मिल रही, तो दूसरा बोल कम से कम मुझे नौकरी तो है. मेरे पास नौकरी भी नहीं है, एटलीस्ट अभी नहीं तो कभी ना कभी तुझे तो पैसा मिलेगा. और हमारा ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखोगे, इट इज हैपहैज़ार्ड. प्लानिंग नहीं है. अगर आप मुझे अगर कोई पूछोगे कि सर काइंडली रिकमेंड कि कौन सा एक प्रॉपरली प्लान्ड अर्बन एरिया है, वो चंडीगढ़ है. इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान्ड अर्बनली प्लान्ड सिटी, चंडीगढ़. पर आप मुंबई देख लीजिए, पुणे देख लीजिए, स्लम्स एंड ट्रैफिक जैम्स एंड पोल्यूशन एंड सो मच ऑफ नॉइज. देयर इज छोटे छोटे रास्ते, गलियां, नो एंट्री, ये वो करके चला रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ कर नहीं सकते. ये हो चुका है. सो यस, अर्बनाइजेशन तो अभी हम अच्छा देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स भी आएंगे आगे. ग्रोथ ऑफ ट्रेड लेड टू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी. मैंने बोला एवरीबॉडी स्टार्टेड टू अर्न मनी. पुटिंग आउट सिस्टम, अर्ली फॉर्म ऑफ फैक्ट्री सिस्टम. ठीक है, ये पुटिंग आउट सिस्टम का मतलब है, दिस इज द अर्ली फॉर्म ऑफ फैक्ट्री सिस्टम. एक फैक्ट्री सिस्टम में अर्ली मर्चेंट्स स्टार्टेड लुकिंग फॉर न्यू मींस फॉर इन्वेस्टिंग वेल्थ. दे वुड बाय लॉट ऑफ रॉ मटेरियल एंड गिव इट टू द वर्कर्स टू वर्क ऑन. वो क्या बोलेंगे, चलो मैं पेंसिल बेचता हूँ, I sell pencils. So I will buy a lot of wood. रॉ मटेरियल मैं खरीद लूंगा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास जगह, मैं खरीद लूंगा, मैं मशीनरी खरीद लूंगा, मैं सारा रॉ मटेरियल खरीद लूंगा.
और मैं वर्कर्स को हायर करूंगा और उनको बोलूंगा मैं इतना आपको पैसा दे रहा हूं, मुझे एक दिन में 1000 पेंसिल चाहिए. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज पुटिंग आउट. व्हाट आर यू पुटिंग आउट? रॉ मटेरियल. किसको दे रहे हो? वर्कर्स को दे रहे हो, और वर्कर्स उसके ऊपर काम करके आपके प्रोडक्ट्स बना के दे रहे हो. इट कैन बी चेयर, टेबल, फर्नीचर, इट कैन बी एनीथिंग, कार, फैंस, इलेक्ट्रिक बल्ब्स. आप रॉ मटेरियल लाके दे देंगे और लोग उसके ऊपर काम कर, जो वर्कर है वो काम करके आपको अपना प्रोडक्ट दे देंगे, आप उनको वेजेस दोगे. With emergence of steam engine, textile factories were set up. Factory system developed. धीरे धीरे अभी ये जो early form of factory system, that is putting out system, completely transformed into a factory system. Factories अभी को पता है factory क्या होती है. So basically steam engine आ गया, textile industries आ गए, तो demand बढ़ गया, transportation आसान हो गया. People started to demand more and more products. Workers were made to work for long hours with low wages. देखिए प्रॉब्लम्स आने चालू हो गए. They used to work for around 16 to 18 hours a day with 15 minutes lunch break non-stop. This forced women and children to work in extremely unhygienic conditions, went into diseases like tuberculosis, TB, cancer. Okay, ऐसे ऐसे डिजीजेस होने लग गए लोग, क्योंकि कंटिन्यूसली आप वहाँ पे कोई हाइजीन नहीं है आपके लिए. अब जैसे अभी आज भी अगर इंडिया में जो लोग गटर साफ करते हैं, there are people who clean gutters, so blockages निकालने के लिए. अपने आर्टिकल 15 अगर देखा होगा मूवी आयुष्मान खुराना का, उसके अंदर वो बंदा गटर में लिटरली उस गटर में अंदर जाता है and he is just wearing his baniyan and underwear, that's it. He is not having any protective suit or any mask which he can go inside that gutter, clean that gutter and come outside. No. आज भी आप देखेंगे लोग वैसे उतर जाते हैं साफ. इट इज सो अनहाइजीनिक दैट पर्सन, उसकी 40-45 तक ही विल हैव सीरियस इश्यूज इन हिज लंग्स एंड हार्ट एंड किडनीज एंड व्हाट नॉट. क्योंकि समवेयर डाउन द लाइन स्विमिंग पूल में जाने के बाद पानी तो मुंह में जाता ही है, तो इमेजिन करो कौन सा पानी अंदर जा रहा है. सो या इट वाज अनहाइजीनिक का आप मीनिंग समझ लो कि अनहाइजीनिक वैसे बोलते हैं. अनहाइजीनिक, हमारा हाइजीन और ये हाइजीन में जमीन आसमान का फर्क है. हम थोड़ा सा यहाँ पे यार झाड़ू नहीं मारा है, अनहाइजीनिक है. ये है अनहाइजीनिक जो मैं बता रहा हूँ. इतनी बुरी कंडीशन में औरतें और बच्चे काम कर रहे हैं इन अर्बन सेंटर्स, इन फैक्ट्रीज, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है. अभी भी बहुत जगह पे प्रॉब्लम चल रहा है. As trade and commerce expanded, new kind of businesses, organizations like regulated companies, joint stock companies, chartered companies, कई हो. अभी धीरे धीरे एक्सपेंशन चालू हो गया, कैपिटलिज्म बढ़ने लग गया, अलग अलग टाइप की कंपनी स्थापित होना चालू हो गया. Though it created unprecedented wealth and prosperity of landowner and merchant, it also created unprecedented poverty for the majority. लोग अमीर बने, मैंने बोला, merchants, landlords, ये सारे अमीर हो गए. They got a head start because उनके पास पैसा था already. और गरीब लोग और गरीबी में फेंके गए. Poverty increased actually. बहुत सारे लोग survive नहीं कर पाए, तो वो बहुत सारे poverty में push कर रही थी. No health, no education, no sanitation, nothing. Problem चालू हो गए. There was increasing crime and violence. Crime, violence में बहुत बढ़ गया crime. There were class wars and uprisings. 19th century is called as century of revolutions. जहाँ पे आप American Revolution, French Revolution और Industrial Revolution हुए. That's why it's called as a century of revolution. ये तीनों revolution उसी वक्त start हुए, American, French and Industrial Revolution. Since benefit accrued to only a small section of population, बहुत कम population थी जिनको इनका फायदा हुआ. अमीर होता क्या, गरीब होता गया. ठीक है. Also, as the capitalist system developed, the locus of economic power shifted from land and landlords or landholders, who also enjoyed political power, to the bourgeoisie. तो मैंने बोला पुराने जमाने में जिनके पास सबसे ज्यादा जमीन हुआ करती थी वही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे, लेकिन अभी जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, मर्चेंट्स, वो लोग ज्यादा पावरफुल बन गए और उनकी लॉबिंग ज्यादा हो गई rather than the landowners. क्योंकि लैंडओनर का एक लैंड फिक्स होता है, उसके अंदर क्या प्रोडक्शन फिक्स होता है, दैट प्रोडक्शन कैन वैरी, बट मर्चेंट का पैसा ही पैसा कमा रहा है. योर मनी इज अर्निंग मनी फॉर यू. सो दिस मर्चेंट्स बिकेम सुपर रिच एंड पावरफुल पीपल इन यूरोप. मर्चेंट्स आल्सो वांटेड पॉलिटिकल पावर टू फर्दर प्रमोट देयर इंटरेस्ट. देखा, करने लग गए लॉबिंग कि
कि हमारा ट्रेड इंप्रूव करो, बढ़ाओ। अर्लियर मर्चेंट सपोर्टेड राइज ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। पहले उन्होंने मोनार्की को सपोर्ट किया क्योंकि एक राजा बोलता था कि पूरे यूरोप में एक ही लॉ होगा, ओके, लेकिन इट वाज एब्सोल्यूट। राजा के मूड स्विंग भी होते हैं ना, so absolute monarchy, but abhi they wanted to change it from the notion of subject to citizens who have inalienable rights which cannot be taken away by the kings. इसका मतलब क्या है? Subject to citizens. इसका मतलब ये है कि अगर मैं इंडिया का आपको एग्जांपल दूं, we were treated like subjects when we were under the British rule. A subject is a person who does not have any rights. He cannot enforce any rights against the government. But when I say citizens, citizens have rights and they can enforce, they can go to the judicial system and they can enforce their rights. अभी merchants rights demand करने लगे and they wanted a system to enforce it. और उसके अलग सिस्टम लगेगी, राजा ही लॉ बना रहा है, राजा ही लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहा है और राजा ही लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हमारा डीपीएसपी है ना, तो यही है कि भाई वो लोग डिमांड करने लगे हमको राइट्स चाहिए, और ऐसे राइट्स जो हमसे छीने नहीं जा सकते, हमसे वो राइट छीने नहीं जा सकते। हमारे फंडामेंटल राइट्स कोई हमसे छीन सकता है क्या? कोई वॉयलेट कर सकता है क्या? इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट, ओनली इफ देयर आर लिमिटेशंस, देन ओनली। अदरवाइज इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आपके राइट्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता। नोबडी कैन टच यू, करेक्ट, विदाउट एनी रीजनेबल लॉजिक और सम लॉ, करेक्ट। तो अभी ये मर्चेंट बोल लगे हाँ ये राजा महाराजा का बहुत नाटक हो गया, हमें धीरे धीरे डेमोक्रेसी चाहिए। दे आर मूविंग टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, सिटीजन्स राइट्स, है ना, धीरे धीरे वो डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। मर्चेंट स्टार्टेड टू क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ किंग्स। डिवाइन राइट थ्योरी केम टू बी चैलेंज। डिवाइन राइट थ्योरी पता है आपको क्या है? डिवाइन राइट थ्योरी का मतलब ये है कि जो उस जमाने के जो राजे महाराजे हुआ करते थे, दे कनेक्टेड देमसेल्व्स विद डिवाइन पावर्स। डिवाइन पावर्स मतलब गॉड। वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि वी आर डिसेंडेंट्स ऑफ गॉड्स। हाँ, because at that era, 14th century, 15th century, religion played a very important role. जैसे laws, legal system आज जो आप पढ़ रहे हैं, laws में इतने सारे constitutions हैं, IPC है, CRPC, ये ऐसा कुछ नहीं था तब। तब religion में जो बोला है, बाइबल में, भगवत गीता में, कुरान में लिखा है, वही law। तो ये किंग्स ही उन चीजों को इंटरप्रेट करते थे और फिर लोग क्वेश्चन करते थे कि आप कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो? I am the descendant of God। और ऐसे अलग-अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, अलग-अलग सेरेमनीज रखते थे, जिससे लोगों को विश्वास हो जाता था कि ये भगवान की पावर या इनके पिताजी की पावर अब अपने बेटे में आ गई है, और लोग विश्वास भी करते थे। They used to just perform some ritual, ओम भट स्वाहा कुसुम, ऐसा करके मतलब फादर का सारा पावर अब बेटे में आ गया है, और अभी जो भगवान हमारे राजा में था अभी उसके प्रिंस में आ गया। And people used to believe that. People used to believe that. तो ये they started questioning, आप भगवान के डिसेंडेंट तो क्या प्रूफ है? Because people started to become scientific now. They wanted factual evidence. अच्छा, आप डिसेंडेंट ऑफ गॉड, दिखाइए आपका lineage, कोई डॉक्यूमेंटेशन है, कोई प्रूफ है, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, आपके फादर का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए, दिखाइए तो डॉक्यूमेंटेशन, आपका पास्ट कहाँ से, कैसे आप भगवान को कनेक्टेड हो, किसने देखा है भगवान को, किस मिरेकल की बात कर रहे हो? This is superstition. People started to question the divine right theory कि राजा भगवान नहीं है, राजा राजा है, आपकी तरह मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन ट्रिगर्ड द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मोनार्की इन यूरोप। मैंने बोला they were slowly and steadily they were moving towards democracy। देखा, मैंने बोला डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसी मॉडर्निटी होती जा रही है, यूरोप में चेंज होते जा रहा है। In England, democracy emerged gradually, but it was not so well all over Europe. धीरे-धीरे फ्रांस में, इंग्लैंड में डेमोक्रेसी कंसेप्ट आई, लेकिन ऑल ओवर यूरोप, मतलब भाई यूरोप बहुत बड़ा है, बहुत देश है ना। जर्मनी है, जर्मनी में डेमोक्रेसी काफी लेट है। जर्मनी तो भाई नाजी ये वो तो बहुत टेंशन खाते रहते हैं। तो बाकी के सारे, इंग्लैंड तो आज भी मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, मोनार्कियल डेमोक्रेसी। हम रिपब्लिक डेमोक्रेसी आज भी वहाँ पे मोनार्की है। So it took time for the democracy to spread all over Europe. It took time क्योंकि सभी कंट्रीज किंग्स को अपनी अथॉरिटी पावर किसी को भी नहीं छोड़ना। मेरे हाथ में मैं किंग, why should I want democracy? Period of enlightenment. Enlightenment मतलब लोगों में जागृति, enlightenment मतलब जागृति, रियलाइजेशन
अरे ये ऐसा है, ओ इतने सालों से जो हम सुनते आ रहे हैं वो सब झूठ है। एनलाइटमेंट, द वन थिंग व्हिच इज मोस्टली स्केयर्स द गवर्नमेंट, कि लोग अगर एनलाइटेंड हो गए सरकार तो गिर जाएगी भाई, और इसीलिए वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोगों को अंधेरे में रखते हैं। पहले न्यूज़पेपर, फिर टेलीविजन, अभी इंटरनेट, कीपिंग पीपल इन डार्कनेस। उनको कभी समझने ही मत दो कि चल क्या रहा है। The new problems which emerged due to the capitalism, industrialization and urbanization could not be resolved by customary methods. अब ओम भट्ट स्वाहा से सॉल्व नहीं हो रहे प्रॉब्लम। राजा कुछ ऐसा कर रहा है पर वो उससे ऐसे से सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉब्लम। Problem are not solved. Poverty is increasing, crime is increasing, violence is increasing, wages are not increasing. Wages कहाँ बढ़ रहे हैं? बाकी सारे प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं, और majority of the population is under distress. Majority of the problem is under pressure. Majority of the population is suffering. Very few people, landlords and merchants are enjoying, including the king. आम जनता का क्या? So people were looking for methods to resolve them, and as this raised confidence in human problems can be solved by human endeavor. आप भगवान, divine power, superstition, black magic के ऊपर आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो क्या क्राइम का? नहीं कर सकते। आपको ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ह्यूमंस ने ही सॉल्यूशन निकालना चाहिए, ह्यूमंस ने ही डिस्कस करना चाहिए कि हाउ शुड बी सॉर्ट आउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ह्यूमन प्रॉब्लम्स नीड्स ह्यूमन endeavor, ह्यूमन सपोर्ट, ह्यूमन एनालिसिस। Social conditions in wake of rising industrial society created a need for new knowledge for the emergence of better society. इंडस्ट्रियल सोसाइटी बढ़ रही है, सोशल कंडीशंस खराब है, so we need new knowledge to solve the problems. New knowledge से अभी ये प्रॉब्लम पुराने नॉलेज से सॉल्व नहीं हो रहे। We need new sociological knowledge to solve social problems. New thinking emerged which led to the Reformation and it led to Enlightenment. साइंटिफिक एनालिसिस लोग करने लग गए, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस मतलब भी साइंटिफिक एनालिसिस लोग करने लग गए, and slowly and steadily people started to believe that earth is not a box, earth is round, earth is not the center of the universe, sun is the center of the universe, sun is not revolving around the earth is revolving around the sun। ये पहले क्योंकि ऑब्जर्वेशन से कॉमन सेंस से लोग रह रहे हैं, ये सन घूम रहा है, अरे वहां से जाओगे तो आदमी गिर जाएगा, आपका फ्लैट सरफेस है। पहले लोगों को लगता था अर्थ इज फ्लैट, ज्योग्राफी पढ़ोगे तब पता चला कि फिर पता चला कि अर्थ गोल है। नहीं, अर्थ गोल नहीं है, ज्वाइड करके अपना शेप है, ऐसा शेप है, ओवल अलग है, उसको GEOID ऐसा नाम दिया गया है, ज्वाइड शेप है हमारे अर्थ। सर्कल भी नहीं है, वो अलग अलग वो जो होते हैं ना, वो है ही नहीं, ऐसा अलग ही शेप है, जहाँ पे इक्वेटर की तरफ दबा गया है और थोड़ा एक्सपांड हो गया है ना। रियलाइजेशन कब हुआ? जब हमने उसकी ये एनलाइटनमेंट क्यों हुआ? साइंटिफिक स्टडी, सोशियोलॉजिकल स्टडी, अब यू स्टार्टेड यूजिंग टेक्नोलॉजी, यू स्टार्टेड फाइंडिंग फैक्ट्स, ट्रुथ। वरना पहले हाँ भगवान ने यूनिवर्स बनाया, कोई प्रूफ नहीं है, बिग बैंग थ्योरी है, एनलाइटनमेंट, बिग बैंग थ्योरी। एग्जांपल दे रहा हूं मैं। These ideas were appealing to rising merchant class, unlike Catholic beliefs that man is born because of sin. Sin, आप पाप करते हो, पाप करने, लस्ट की वजह से बच्चा पैदा होता है, वो गलत कंसेप्ट है ना। तो भाई धीरे धीरे वो, और दिस वाज वेरी अपीलिंग टू द मर्चेंट्स, क्योंकि उनका फायदा हो रहा है ना, ट्रेड बढ़ रहा है, लोग साइंटिफिक हो रहे हैं, एनलाइटमेंट हो रहा है, क्वेश्चन कर रहे हैं किंग की अथॉरिटी में, क्या व्हाट सिन, क्या सिन, शादी किया मैं। और मर्चेंट को, पर वो जो ऑर्थोडॉक्स कैथलिक्स थे वो बाइबल को फॉलो करते थे, दिस पीपल हैव स्टार्टेड फॉलोइंग साइंस, वो एनलाइटेड हो गए। हम नहीं मानते बाइबल को, वो मेरा प्राइवेट अफेयर है, वो मैं घर पे देख लूंगा, बाहर नहीं चलेगा बाइबल। आज देखो आज अगर आप बोलोगे अरे वो भगवत गीता में ऐसे लिखा, हाँ ठीक है भाई, वो स्पिरिचुअल चीज है, पहले वही रियल लाइफ था, भगवत गीता वाज रियल लाइफ। लोग भगवत गीता के जो चीजें बताई गई वो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, आज भी हम करते हैं। आज भी किसी को नुकसान मत करोगे तो खुद को भी नुकसान होगा, दैट्स फाइन, बट ये समझना जरूरी है कि लोगों ने वो पर्सनल लाइफ में उसको पब्लिक लाइफ में नहीं लाते रिलीजन को। आज
समझ में आ रहा है? सो एनलाइटनमेंट आने लग गया, लोगों को अभी साइंटिफिक रीजन चाहिए। कुछ भी हमें बोल दो ओम भट्ट स्वाहा प्रॉब्लम सॉल्व, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी गरीबी नहीं हट रही है, हमें लॉस चाहिए जिससे हमारे वेजेस बढ़ जाए। दैट्स व्हाई वी हैव द मिनिमम वेजेस एक्ट। न्यू थिंकिंग सेड मैन इज द फाइनेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। कोई सीन नहीं है, कोई पाप करके इंसान पैदा नहीं होता है, भगवान ही 100 जन्म लगते हैं इंसान का जन्म लेने के लिए। भाई बहुत पुण्य किया होगा इसके लिए आ गए, वो कंसेप्ट चेंज होने लग गया। क्रिश्चियन बिलीव सेड ट्रूथ इज एक्वायर्ड बाय गिफ्टेड इंडिविजुअल। सच्चाई सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जिसको गॉड ने गिफ्ट किया कि तुझे ही पता है। प्रॉफिट्स, वो कौन है गिफ्टेड पर्संस? प्रॉफिट्स, गुरु, बाबा। Renaissance said truth is acquired through experience, through knowledge, through exposure, है ना? पढ़ोगे तो ही तो पता चलेगा क्या चल रहा है। If you don't read, अभी आज का जनरेशन अगर पूछोगे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं क्या, they are looking like this, हाँ? न्यूज़पेपर नाम की भी चीज होती है क्या? और उसी जगह पे सोशल मीडिया पे कोई न्यूज आती है तो उसको वायरल कर देते हैं, और वो न्यूज आधी ही होती है। इट्स ओनली हाफ द न्यूज, जो जिससे उनको ज्यादा लाइक्स मिलेंगे। गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, गॉड इज नॉट द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, बट गॉड इज एक्सपीरियंस्ड इन लॉ ऑफ नेचर। भगवान ने दुनिया को नहीं बनाया, हम गॉड को सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि भाई ये झाड़ जिंदा कैसे, हम कैसे जिंदा है, how am I working, how this every system is functioning, because of God. You can feel him, you can experience him, you can't see him, you can't touch him. To glorify God, discover laws of nature. Don't do some rituals and superstition and black magic. काम करो, नेचर के लॉज को समझो और गॉड को एक्सपीरियंस करो। एक्सपीरियंस डेवलप इनटू एक्सपेरिमेंटेशन। लोग एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। चेंज इन क्रिश्चियन बिलीव्स एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोमन कैथोलिक चर्च इंक्रीज। रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ प्रोटेस्ट बढ़ने लग गई और रिलीजन और स्टेट दोनों अलग अलग हो। वरना पहले चर्च ही सरकार चलाता था, जो चर्च बोलेगा उसके हिसाब से ही गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी पड़ती थी। वैटिकन सिटी पता है, रोम में, वैटिकन सिटी देयर इज इन रोम, वहां पे पोप, जो पोप है वो सारे क्रिश्चियनिटी का हेड होता है। तो आज भी उनका काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है गवर्नमेंट पे। इटली, रोम इज अ पार्ट ऑफ इटली, राइट? वहां पे आज भी कैथोलिक चर्च का, पर उनका जो पावर था 50-100 साल पहले, अभी वो काफी कम है। ओके, सो कैथोलिक चर्च के खिलाफ लोग प्रोटेस्ट करने लग गए, क्योंकि कोई अगर कोई जाता था ये बोलने के लिए कि मैं गरीब हूँ और मेरे व्हाई एम आई पुअर, तो उसको क्या कहा जाता था? बिकॉज तुमने पिछले जन्म में पाप किए, बिकॉज तुम्हारे पिताजी ने पाप किए, बिकॉज तुम्हारे घर वालों में प्रॉब्लम है, तुम्हारे राशि में ये लिखा है, तुम्हारा ये तुम्हारा वो। अभी मैं गरीब क्यों? अबे साले काम कर ना, मेहनत कर, पढ़ाई कर, डू सम वर्क, भीख क्यों मांग रहा है? ये एनलाइटनमेंट है। और उसको टू कीप दैट पर्सन टू स्टे देयर, कि वो इंसान वहीं पे रहे, वो इंसान वहीं पे जिए, वो अमीर ना बन जाए, उसको अंधेरे में रखो। So people started to question these norms of Christianity. Protestants wanted no priest between man and God. पंडित की जरूरत नहीं है हमें, हमें भगवान को मिलने आप खुद जाके नमस्कार कर लेंगे, आपको आने की बीच में जरूरत नहीं है। Man has been given a life for purpose. हर एक इंसान का, आपको पैदा किया मतलब भगवान आपसे कुछ करना चाहता है, ये समझ लो। That is to demonstrate glory of God by unraveling the mysteries of nature. हमें इस समाज की, इस सृष्टि का पढ़ाई करके हमें सब पता करना है कि आया कैसे, और इंसान ने किया। We have done it. इस सन, अलग-अलग प्लैनेट्स कैसे फंक्शनिंग चलती है, झाड़ क्यों जिंदा है, मैं क्यों जिंदा हूं, हमने ये स्टडी किया। We understood the law of nature. ठीक है? Knowledge acquired by reasoning was to be used for human welfare. लोगों की भलाई के लिए उस नॉलेज का इस्तेमाल करो, डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं। This technology was used for industrial production. Okay? जो भी नॉलेज हमने गेन किया, जिससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हुआ, faith developed in efficacy of science to help in solving human problems. Now people, rather than relying on religion, people started to rely on science to solve problems. फैन बंद हो गया तो आप क्या करोगे? ओम भट्ट स्वाहा, हे भगवान ये फैन को चालू कर दे, भगवान मैं तेरे को 11 नारियल चढ़ाऊंगा, भगवान मुझे यूपीसी प्रीलिम के पास करा दे, मैं रोज आके तेरे को 100 नारियल चढ़ाऊंगा। कुछ नहीं होने वाला। अभी से पढ़ाई नहीं करोगे तो प्रीलिम पास नहीं होगे। सिंपल, पढ़ाई करना है, मेहनत करना है। ऐसा रोज जाके भगवान को माथा टेक के भगवान मुझे पास कर दो, इससे आप पास या आईएएस नहीं बन सकते। यू हैव टू रिलाई ऑन नॉलेज। पढ़ाई करनी पड़ेगी, सिंपल।
In late 17th, 18th, 19th century, thinkers were reflecting on these changes. ये भी जो changes हो रहे थे because of industrialization, urbanization, capitalism, democracy. लोग सारे demand करने लगे. They had certain ideas in common and are called as the Enlightenment philosophers. ये सारे philosophers जो थे इन्होंने अपनी अपनी philosophies रखी to sort out the problems in the world. Their ideas are referred to as philosophy of history. That is inquire into the true nature of changes that were taking place. कि देखिए ये बदलाव क्यों हो रहे हैं? Why these changes are happening? We have to go to the root cause of the problems such as slums and corruption and crime and violence. ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं न कहीं जिन चीजों की वजह से empowerment, development, increasing standard of living हो रहा है, उन्हीं चीजों की वजह से problems हो रहे हैं. Because only certain privileged people are getting the maximum profit. Equal distribution नहीं हो रहा है. Exploitation. ये पढ़ाई करके समझ में आएगा. You have to go to the true nature of changes. कि changes क्यों हो रहे हैं? Now, beliefs that were adopted by this enlightened philosophers. इनकी belief system क्या थी? इन philosophers की जो enlightened हो चुके थे, इनकी belief system क्या थी? Man is progressing, and this is taking human society towards perfection. हम धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, जिससे समाज परफेक्ट होता जा रहा है. Initial Christian belief was society will remain as it is. हम क्रिश्चियनिटी के बारे में इतना ज्यादा बात क्यों कर रहे हैं? Because we are talking about modernity in Europe. हम यूरोप की बात कर रहे हैं. याद रखना, आप बोलोगे सर ये क्रिश्चियनिटी, रोमन कैथोलिक चर्च, ये यूरोप के प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं. इंडिया या एशिया की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया की भी बात नहीं कर रहे हैं. We are talking about यूरोप. समझ में आ रहा है? Don't get confused कि हर जगह पे क्या पूरे पेपर में क्रिश्चियनिटी लिखना है कि नहीं. अगली बार रिलीजन शब्द का इस्तेमाल करना, किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन का नाम नहीं लेना. ठीक है? सो इनिशियल क्रिश्चियन बिलीफ क्या थी कि समाज ऐसा का ऐसा कुछ बदलेगा नहीं, पर क्या हुआ? बदल गया. सो दैट्स व्हाई मैन इज प्रोग्रेसिंग एंड दैट विल आल्सो डेवलप द ह्यूमन सोसाइटी. देयर इज क्वेश्चंस whether changes occurred in random spurts or followed a regular pattern. उन्होंने स्टडी किया ये जो चेंजेस हो रहे हैं समाज में, are they random or they are having or they are following a pattern. ये जो भी समाज में बदल हो रहा है, एक तरफ आप you are talking about progress, you are talking about enlightenment, you are talking about perfection, और दूसरी जगह पे you are talking about distress, you are talking about violence, you are talking about unhygienic condition. ये पैटर्न है कोई इसके अंदर, ये रैंडमली ये चेंजेस हो रहे हैं. ओके, इन्होंने फाइंड आउट किया. दे रिस्पोंडेड बाय प्रिज्यूमिंग दैट चेंजेस टेक प्लेस इन एन ऑर्डरली फैशन. लॉज गवर्निंग देम कैन बी डिस्कवर्ड. जो समाज में चेंजेस हो रहे हैं उनमें पैटर्न है. देयर इज अ पैटर्न एंड दिस पैटर्न हैज बीन एक्सपीरियंस्ड बाय ऑल द सोसाइटीज इन द वर्ल्ड. चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, इंडिया हो, चाइना हो, all these societies have gone through these patterns. हम भी एक दिन देखो 2040 तक इंडिया विल बी वन ऑफ द सुपर पावर्स, और ऐसा माना जा रहा है 2050 तक हम चाइना को भी ओवरटेक कर लेंगे, ऐसा माना जा रहा है. चलिए, एटलीस्ट आई वांट टू बी अलाइव व्हेन इंडिया विल ओवरटेक चाइना. मैं आई वांट टू विश कि मैं वो पढ़ूं पेपर में कि हमारी जीडीपी, हमारा पर पीपीपी जो है, पर पैरिटी जो है, वो इनसे ज्यादा हो गया. So we'll wait for that. So उन्होंने बोला कि ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना समाज में, इसको एक पैटर्न है, और इस पैटर्न के पीछे लॉज हैं, सोशल लॉज. So we have to find this, what is governing these changes, what laws are governing these patterns, what laws. यही तो सोशियोलॉजी है. कि समाज में जो बदल हो रहा है उसके पीछे पैटर्न है, वो पैटर्न ऐसा क्यों हो रहा है, यही तो पढ़ना है सोशियोलॉजी में. They redefined the notion of society as before political society of state was coterminous with society as a whole. New concept of civil society emerged. Society came to be considered larger than state, and it was considered that parts of society are interpreted. तो धीरे-धीरे हम सोशियोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे सोसाइटी को रीडिफाइन किया गया. सिविल सोसाइटी की कंसेप्ट है. सिविल सोसाइटी क्या होता है? इट्स अ पॉलिटिकल कंसेप्ट वेयर सिविल सोसाइटी में जो हमारे समाज के एनलाइटेड लोग हैं, वो एक साथ आके कुछ समाज में बदलाव लाना चाहते हैं. एनलाइटेड पीपल की बात कर रहा हूँ. दोज वर सम इन्फ्लुएंशियल पीपल इन सोसाइटी which are neither politically empowered or they are neither like financially empowered, but they are doing something for the society. जो activist होते हैं, media personals होते हैं, वो लोग. And at the same time ये समझ में आया कि सरकार से बड़ा समाज है. सरकार समाज के लिए है,
समाज सरकार के लिए नहीं है ना। स्टेट क्यों अस्तित्व में आया? सोसाइटी को सिक्योर रखने के लिए, सोसाइटी की नीड्स फुलफिल करने के लिए। उल्टा नहीं है कि सोसाइटी देयर टू फुलफिल द स्टेट, जो राजा बोलेगा वैसे हम हाथ जोड़ेंगे। बेटा तेरे को राजा बनाया ताकि तू हमें सर्व करे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करे। तुझे मंत्री क्यों बनाया हमने? सो यू विल सॉर्ट आउट आवर प्रॉब्लम्स। तू हमारे लिए, हम तेरे लिए नहीं। यू आर पब्लिक सर्वेंट। ये एटीट्यूड जो है कि मैं ही राजा हूं, मैं, ये आज भी आप पब्लिक सर्वेंट्स में, काफी पब्लिक सर्वेंट्स में देखते हैं, उनको याद दिलाना पड़ता है आप पब्लिक सर्वेंट हो, पब्लिक आपकी सर्वेंट नहीं है, ये याद दिलाना पड़ता है। सो धीरे धीरे हम सोसाइटी की तरफ, सोसाइटी हैज डिफरेंट पार्ट्स एंड देन एवरी पार्ट इज परफॉर्मिंग अ फंक्शन, जो हमने फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी में देख रहे हो आप कैसे कैसे सोशियोलॉजी की तरफ आ गए। If scientific method is used to discover society, laws and rules could be developed which can be used for creating perfect human society. देखिए perfect human society यूटोपियन कंसेप्ट है। यूटोपियन मतलब आप सिर्फ सपने में देख सकते हैं, सब कुछ परफेक्ट है, सब लॉज फॉलो कर रहे हैं, कोई किसी के ऊपर किसी के राइट्स वायलेट नहीं कर रहा। दिस इज ऑल किताबों में अच्छा लगता है, पिक्चर में अच्छा लगता है, बट हाँ कोशिश तो की जा सकती है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके आप सर्टन लॉज को फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन भाई इंसान के ऊपर साइंस कितना अप्लाई करोगे? क्योंकि साइंस क्या चाहता है? प्रेडिक्टेबिलिटी। आर वी प्रेडिक्टेबल ह्यूमंस? नो। आज ये इंसान कैसे बिहेव कर रहा है, कल वो कैसे बिहेव करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बट हाँ एक होप था, एक होप कि भाई साइंटिफिक मेथड का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो सोशल लॉस को हम फाइंड आउट करेंगे, और एक बार हमें सोशल लॉस पता चल गए, समाज के कायदे हमें पता चल गए, तो हम हमारी सोसाइटी को परफेक्ट बना देंगे। चलो कोई बात करने में क्या जा रहा है, सोचने में पैसा तो नहीं लग रहा, सपने में पैसा तो नहीं लग रहा। There emerged a consensus that human society is also amenable to observation. हम हमारे समाज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, and laws governing it can be discovered. Some of the Enlightenment thinkers said that not only rational but perfect human society can be developed, as said by Marx through revolution. कार्ल मार्क्स को एक परफेक्ट सोसाइटी थी। कार्ल मार्क्स की कंसेप्ट क्यों फेल हो गई? क्योंकि कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि सरकार को हटा दो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हटा दो, और जो भी प्रॉपर्टी है वो सभी लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यूएसएसआर ने वो किया, दे डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी इक्वली टू एवरीबॉडी। पीपल लॉस्ट द जिल टू वर्क। मैंने 10 चेयर बनाए तो भी मुझे 100 रुपए मिलेंगे, और मैंने 1 चेयर बनाई तो भी मुझे 100 रुपए मिलेंगे, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट। मैं आया हूं या मैं प्यूर हूं, दोनों को सैलरी 50,000। सो दिस इज द एंड ऑफ डेमोक्रेसी। आई डोंट हैव एनी, कुछ करूं या ना करूं मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे। यूएसएसआर ब्रोक डाउन। बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि एग्जांपल दूंगा, अभी यहाँ पे रेलेवेंट नहीं, पर बताना चाहूंगा कि कैसे ये प्रॉब्लम परफेक्ट सोसाइटी के लिए हो सकती है कार्ल मार्क्स के हिसाब से। यूएसएसआर में क्या हुआ, देखिए हम सब जानते हैं कि जब हम फ्रूट्स एक साथ रखते हैं तो एक खराब फ्रूट अगर आप रखोगे तो वो एक फ्रूट सभी फ्रूट्स को खराब कर देता है। These farmers, अगर आप सोचिए मैं फार्मर हूँ, मेरी खेती है और मुझे दिख रहा है कि एक एप्पल खराब है, तो उसको फेंक दूंगा मैं और मैं पैक करूंगा, राइट? इट्स कॉमन सेंस है, तो मेरा सारा माल सड़ जाएगा, मुझे नुकसान होगा, करेक्ट? अभी हम तीनों, चारों, पांचों जो है, हम सब जन खेती कर रहे हैं। आपका 10 एकड़ जमीन है, आपका 50 एकड़ जमीन, मेरा 5 एकड़ जमीन। आपको लगेगा सबसे ज्यादा पैसा आपको चाहिए, आपको लगेगा मुझे थोड़ा कम चाहिए, मुझे इसको तो बिल्कुल नहीं देना है, इसको तो चिल्लर दे दो। और हो क्या रहा है, सभी को 50,000 मिल रहा है, कुछ भी करो। तो पैकिंग करते समय फार्मर ने सड़े गले सब सारे फल एक साथ पैक करके दे, पूरा यूएसएसआर इकोनॉमी कोलैप्स हो गया। क्या ना फार्मर दूर है, अगर मेरा खुद का होता तो मैं कभी ऐसे पैक नहीं करता, बट वो बोले क्या फर्क पड़ रहा है, पैसे तो मिलने वाले, उसको भी उतना मिलेगा, मुझे भी उतना है, भेज दो, सब सामान खराब। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल हाउ पीपल स्टार्टेड टू बिकेम डीमोटिवेटेड टू वर्क। सरकारी नौकरी में वही तो प्रॉब्लम है, मोटिवेशन रहता नहीं, जॉब सिक्योरिटी रहती है। तो इसलिए अगर आप जाते हो किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, जो डॉक्यूमेंट आपको 4 दिन में मिलना चाहिए उसको 40 दिन लग जाते हैं। हर चीज में उनको पैसा चाहिए, पैसे से उनको मोटिवेशन मिलता है, अरे 500 रुपए की नोट है, चलो काम करते हैं, सडनली दे बिकम मोटिवेटेड। यस, दिस इज अ फैक्ट। लोग जोक समझते हैं लेकिन ये फैक्ट है। देयर वाज आल्सो एन अपोजिंग करंट ऑफ थॉट, कंजर्वेटिव रिएक्शन। अभी देखिए इतने चेंजेस हो रही है, लोग साइंस के बारे में बात कर रहे हैं, परफेक्ट ह्यूमन सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, लोगों को समाज में चेंजेस लाने हैं, समाज को परफेक्ट करना है, साइंटिफिक लॉज
इम्प्लीमेंट करने हैं, सामाजिक लॉज हमें पैटर्न ढूंढने हैं और समाज को परफेक्ट करना है। लेकिन जो कंजर्वेटिव्स हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, उनके लिए समाज ऑलरेडी परफेक्ट है, क्योंकि उनकी पावर है ना। कैथलिक चर्च या जो ऑर्थोडॉक्स थे क्रिश्चियंस, उनके लिए तो बिकॉज दे आर पावरफुल, व्हाई वुड दे वांट टू एनलाइटन द पीपल? कि दे वर एनलाइटेड क्योंकि वो पावरफुल थे, उनको इनके ऊपर कंट्रोल करना था। समझ लो कि when the lower strata of the society becomes empowered, the upper strata gradually loses power. जो रिजर्वेशन पॉलिसी की वजह से हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से हुआ, लड़कियों को एजुकेशन मिलने लग गए, एससी एसटी लोगों को रिजर्वेशन मिल गया, they became more empowered. और जो वर्चस्व था अपर कास्ट का वो खत्म हो गया है। अब अपर कास्ट बोलता है अच्छा तू वो है कि कुछ काम का नहीं है, ये ऐसा हो गया because the lower caste has become more empowered because of the policies. So Louis de Bonald and Joseph B. Maistre, French conservative thinkers, condemned these changes. उन्होंने बोला नहीं, हमारा समाज बर्बाद हो जाएगा, आप साइंस ये सब गलत है, आप भगवान को गुस्सा आएगा, भगवान सारी सृष्टि को बर्बाद कर देंगे। Because they are conservative. आज भी हमारे समाज में भी काफी कंजर्वेटिव लोग हैं। शाहबानो केस, where a Muslim woman was told to be given maintenance, suddenly Supreme Court, राजीव गांधी ने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि ऑर्डर रिवर्स कर दो, क्योंकि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम सेड कि नहीं हमारे रिलीजन में ऐसे हम औरतों को मेंटेनेंस नहीं देते, ट्रिपल तलाक इज वैलिड। आज देखो ट्रिपल तलाक इज अ क्राइम। आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सभी औरतों को मेंटेनेंस है। एक जमाने में होमोसेक्सुअलिटी वाज अ क्राइम, आज नहीं। एक जमाने में अडल्ट्री वाज अ क्राइम, आज नहीं। चेंज हो रहा है ना, कंजर्वेटिव नहीं रहे। पहले मतलब अडल्ट्री इज जस्ट अ साइन दैट वुमन इज माय प्रॉपर्टी, इफ समबडी अदर यूजेस इट देन मैं उससे कंपनसेशन लूंगा, यही था ना अडल्ट्री। और उसी जगह पे जब कोई हस्बैंड कर रहा है तो बीवी नहीं कर सकती क्लेम पैसे, मतलब पति उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये क्या नाटक है? तो अडल्ट्री को हटा दिया। इट इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। सो बोनार्ड और मैस्टर ने बोला ये सब गलत हो रहा है, ये एनलाइटनमेंट, साइंस एंड लॉज ऑफ नेचर, ये भगवान ने ये बोला, नहीं बोला भगवान ने। इंसान पाप से पैदा होता है, नहीं, हम पैदा हुए बिकॉज़ गॉड लव्स अस। भगवान को मिलना है क्रिस्ट के पास आओ, नहीं, हमारे अंदर ही भगवान है, हमें मत सिखाओ। उनका पावर खत्म होने लग गया तो वो चिल्लाएंगे। जो हमारे रोमन कैथलिक चर्च ऑर्थोडॉक्स लोग हैं वो वहां क्या, अभी यहाँ पे होता हमारे ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक्स, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, वो चिल्लाएंगे। French society faced political instability, economic disparities, and almost every family lost one able-bodied person in the Civil War. और नेपोलियन वॉर्स, जो नेपोलियन के वॉर्स हुए उसमें कोई ना कोई हर फैमिली से मर गया। Almost every family lost one able-bodied person in Civil War or Napoleon War. The conservative reaction provided goals for sociology. अब ये क्या, अभी देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मैंने बोला प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे थे, तो कंजर्वेटिव ने क्या बोला? रोक दो सब कुछ, स्टॉप एनलाइटनमेंट, स्टॉप द रेनेसांस पीरियड, स्टॉप साइंटिफिक रिसर्च एंड कंसंट्रेट ऑन पीस एंड हार्मनी, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। मतलब जैसे थे वैसे, मतलब फिर से जैसे हम प्रीवियसली थे वैसे बन जाओ, तब ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। होने वाले क्या? नहीं होने वाले, बिकॉज समाज उसके आगे चला गया है, समाज प्रोग्रेस करके आगे चला गया है, आप फिर से पीछे नहीं जा सकते। ये 2 बार टाइप हो गया है, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन, ठीक है, तो डबल मैं करता हूँ चेंजेस। Enlightenment glorified science which was hated by the conservatives because science challenged religion. साइंस ने रिलीजन को चैलेंज किया, भगवान होता है, साइंस ने बोला कहाँ है? रिलीजन ने बोला कि ये पूजा कर दो आपका बच्चा पैदा हो जाएगा, साइंस बोलेगा कैसे? इनफर्टाइल है वो, कैसे करेंगे बच्चा पैदा? अच्छा, बाबा का इसके अंदर हाथ है, वो ये है, मतलब दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, साइंस क्वेश्चनड द वेल एस्टैब्लिश्ड रिलीजियस फैक्ट्स। इसलिए तो ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजियस लोग थे उनको पसंद नहीं था साइंस, पर आज तो ऑप्शन ही नहीं है, बिकॉज पीपल बिकेम एनलाइटेंड, पीपल स्टार्टेड टू बिलीव इन ट्रुथ। सच क्या है वो बताओ हमें। So डेवलपमेंट ऑफ साइंस, तो मॉडर्निटी जो है, modernity and social change in Europe brought about tremendous enlightenment. People started to concentrate on sociology, capitalism, industrialization, urbanization.
और सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोशियोलॉजिकल सोल्यूशन चाहिए, रिलीजियस सोल्यूशन नहीं, कंजर्वेटिव सोल्यूशन नहीं। कंजर्वेटिव से बहुत ट्राई किया टू स्टॉप दिस मूवमेंट, स्टॉप रेनेसांस, स्टॉप एनलाइटमेंट, पर हुआ क्या? नहीं हुआ। एंड फाइनली साइंस वन। बट आगे जाके हम पढ़ेंगे कि साइंस और रिलीजन का रिलेशन क्या है, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ब्रेक लेते हैं।